तो पिछली क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कस किया है इकोसिस्टम के बारे में, थ्रेट टू इकोसिस्टम, टाइप ऑफ इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, इन सारी चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया है। तो टुडेस टॉपिक इज threat to biodiversity. What all are the threats? Either natural threats or man-made threats which are harmful for biodiversity. What do you mean by the word threat? Threat. कौन बताएगा इसका मीनिंग? क्या सर? जो ऊपर वर्ड लिखा हुआ दिख रहा है ना, थ्रेट, Threat, थ्रेट का मीनिंग। एक थ्रेड का मतलब तो धागा भी होता है। नहीं, थ्रेड नहीं, वो उसका स्पेलिंग होता है Thread, थ्रेड। ये थ्रेट, Threat, ये वाला जो वर्ड है ना, इसका मीनिंग। सर धमकी होता है तो सर। धमकी का धमकी सर। धमकी। तो यस सर, धमकी। यस सर। बायोडाइवर्सिटी को किससे धमकी मिल सकता है? हाँ, बायोडाइवर्सिटी को किससे धमकी मिल सकता है? नेचर नेचर से। नेचर से? तो नेचर और बायोडाइवर्सिटी में डिफरेंस है क्या? नो सर। ओके, सो थ्रेट का हिंदी अगर बायोडाइवर्सिटी के एस्पेक्ट्स में देखेंगे तो इट विल बी समथिंग लाइक खतरा। तो बायोडाइवर्सिटी को किस किस चीजों से डेंजर है या खतरा है या नुकसान है, ठीक है? तो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट डिफरेंट थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी at global level, national level, as well as local level. So, first point is habitat destruction. So, destruction means it is important to protect habitat in order to protect biodiversity within it. In several previous classes, we have discussed about uh, if we consider any area, it will have different kind of biodiversity. Several examples we have discussed from state of Bihar and compared to the state of Rajasthan. In state of Bihar, we find different kind of biodiversity. In state of Rajasthan, we find different kind of biodiversity. So, when we talk about threat to biodiversity, first thing which is going to be disrupted is that is habitat destruction. तो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होने से बहुत सारा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा बायोडाइवर्सिटी में। जबकि हम लोगों ने पिछली कई सारी क्लासेस में डिस्कस किया है, अगर हम किसी भी एक इकोसिस्टम का कोई भी एक छोटा सा कंपोनेंट अगर हम डिस्टर्ब करते हैं तो इट विल हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन अदर कंपोनेंट्स आल्सो। तो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन इज द फर्स्ट पॉइंट विच क्रिएट्स थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी। अगर हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होगा तो उससे बायोडाइवर्सिटी को भी हार्म होगा। Next point is huge pressure from world's rapidly increasing population. So increasing population will definitely have an negative impact on uh, biodiversity. Global climate change is another role player for disturbing the biodiversity or providing a negative impact on biodiversity. We all know that due to climate change, several components of climates are changing every year. So once these all parameters, climatic parameters, say like temperature, wind speed, sunshine, humidity, rainfall, if these all things will change, the interrelated things
or interrelated components to this climatic parameters will also change. Then habitat fragmentation, either it is by human activity or by natural activities. Next topic is very important topic, that is pollution. So we all know that pollution is playing an major role in negatively impacting each and everything. Similarly, biodiversity will also be not spared by the increase in pollution. Overexploitation of several resources, this will also create an negative impact. Alien species, either introduced by humans to the region where there are no natural predators. And the last one is various diseases. So these all things are going to negatively impact the biodiversity, either at a global level, national level, or local level. What do we mean by alien species? Is there anyone who has idea about alien species? ये सर प्रवासी जो जानवर होते हैं उनको आई थिंक स्पीसीज वो क्या बोले Um, Not about animals only, but nowadays in several news you all can see कि बहुत सारे farmers ऐसा variety of crop या ऐसा variety of fruit या flower उगाते हैं और उनको बहुत ही हाई कॉस्ट में बेचते हैं, जो कि वहां पे पहले कभी नहीं उगाया गया था। ऐसा कोई एग्जाम्पल है? हाँ सर, अभी जैसे कि मध्य प्रदेश में एक आम बोया गया था जो कि हाँ, अभी बहुत तेजी से ज्यादा वो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, ट्रेंड में है। वो आम शायद 2 लाख रुपए किलो है, ऐसा कुछ हाँ है ना, इसीलिए ऐसा ही कुछ। बहुत हाँ, ये और वो जापान आम पाया जापान का जाता है आम सर। है और दैट इज पर्पल इन कलर, पर्पल कलर का है वो, फोटो में जैसा दिखता है। So that is about a variety of mango. Similarly, we can see बहुत बार farmers या एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो लोग कुछ ऐसी वैरायटी उगाते हैं जो कि उस एरिया के लिए नया होता है। So for that all things we call them alien species. तो आप ये देखोगे कि अगर कोई एलियन स्पीसीज हम किसी नए एरिया में इंट्रोड्यूस करते हैं जो कि उस एरिया के लिए सुटेबल नहीं है या पहले नहीं था, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी बहुत सारा पड़ता है। ओके, जैसे कि अगर मान लो हमने कोई क्रॉप उगाया जो कि उस एरिया के लिए सूटेबल नहीं है, या वो एलियन वैरायटी है या एलियन स्पीसीज है, तो उससे रिलेटेड अब जैसे कि मान लो कि बहुत सारे जो डेट्रीवोरस छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं जो कि बहुत सारा ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं। ओके, दे आर हैबिचुअल टू द ऑर्गेनिक वेस्ट विच इज जनरेटेड इन दैट रीजन। अगर हम कोई एलियन स्पीसीज लाते हैं, इधर एनिमल और प्लांट और एनीथिंग एल्स, हो सकता है कि वो डेट्रीवोरस उस एलियन स्पीसीज को डीके करने के लिए केपेबल नहीं हो। तो जब वो एलियन स्पीसीज डीके नहीं होगा, तो इट विल क्रिएट अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन लोकल एनवायरमेंट as well as further more negative impacts will occur. So this is the negative impact which is going to happen due to introduction of alien species. Either it is an animal or a plant or a fruit. ठीक है? So first one is habitat loss. So habitat loss can be described when an animal loses their home. Every animal in animal kingdom has a role there in their animal community, and without their habitat, they no longer have a role. Habitat destruction is currently ranked as the primary cause of species extinction worldwide. Reasons है बहुत सारे habitat loss के लिए due to human activities. First one is agricultural activity or farming activity. Then second is harvesting natural resources for personal use, and third one is for industrial and
अर्बनाइजेशनल डेवलपमेंट। तो ये तीन मेजर रीजन है जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज से होता है, जो कि हैबिटेट लॉस को बढ़ावा देता है। हम लोगों ने बहुत बार क्लास में पिछली क्लास में डिस्कस किया है, अगर कहीं पे डैम बनता है या रिजर्वायर बनता है तो वो उसके लिए हमें बहुत सारा जंगल का एरिया को पानी से भरना पड़ता है, पानी को इकट्ठा करना पड़ता है। तो वहां पे उस एरिया में जो भी एनिमल पहले से रहते थे उनको उस एरिया को छोड़ के दूसरे जगह शिफ्ट होना पड़ता है। So that is an example of habitat loss. So few human activities as well as some natural causes are also there for habitat loss. So through habitat loss through natural activities, habitat destruction through natural process such as volcano eruption, fire and climate change. Then few studies are there which suggest that tropical rainforest in Europe, uh, say like 3,000 million years ago, led to a great loss of diversity. बहुत बार नेचुरल भी बहुत सारी एक्टिविटीज होती है जिससे कि जो भी एनिमल्स का नेचुरल हैबिटेट है वो लॉस होता है एंड दे हैव टू शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सम रेलिवेंट सॉल्यूशंस नेचुरल हैबिटेट को प्रोटेक्ट करने के लिए या मिनिमाइज करने के लिए, दैट इज प्रोटेक्टिंग रिमेनिंग इंटैक्ट सेक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट, देन रिड्यूसिंग ह्यूमन पॉपुलेशन एंड एक्सपेंशन as well as minimizing the expansion of urbanization and industries, educating the public about importance of natural habitat and biodiversity. Then solution to habitat loss can include planting more number of trees, home gardening, in order to reduce need for men to need uh, large land for agricultural farms, which leads to habitat loss. So we all have discussed many times during the topic of aquatic ecosystem. We see that within when we have discussed about aquatic ecosystem, we have discussed the different components of uh, animals which are found in aquatic ecosystem, and how these all components are related to interrelated to different components, natural components. So, I'll give you one example. Like few days earlier, I was watching a documentary that was related on aquatic habitat loss. समुंदर के किनारे कोस्टल एरिया में जितनी भी कम्युनिटी है, स्पेशली अफ्रीकन जो भी लोग हैं nowadays, स्पेशली वो लोग जो कि कोस्टल एरिया में रहते हैं एंड दैट they depend on their livelihood is mainly dependent on fishing. उन लोग पिछले 15-20 सालों से they are not nowadays they are not engaged in fishing activities, but they are involved in doing criminal activities. Why they are engaged in doing criminal activities is because जो भी उनका जो भी कोस्टल एरिया था जहां पे कि वो मछली पकड़ते थे पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले, कोस्टल एरिया में से वो लोग मछली पकड़ के, समुद्र से मछली पकड़ के दे यूज टू सेल इट, और उनका वो लाइवलीहुड, उनका वो जीविका उससे चलता था, उनका फैमिली उससे चलता था, जो भी पैसा उन्हें उन लोगों को फिशिंग से ऑन होता था। अब 15 साल 20 साल पहले क्या हुआ कि बहुत सारा डेवलप कंट्री जैसा कि चाइना, यूरोप के कुछ कंट्री, इन लोगों ने बहुत बड़े लेवल पे फिशिंग करना शुरू किया, कमर्शियल फिशिंग करना शुरू किया। बहुत बड़ी बड़ी शिप लेके ये लोग अफ्रीका के कोस्ट में पहुंच गए
और वहां पे इन लोगों ने लार्ज स्केल पे फिशिंग करना शुरू किया। तो जब लार्ज स्केल पे और बड़ी शिप के साथ, बड़ी मशीनरी के साथ इन लोगों ने फिशिंग करना शुरू किया, तो छोटे जो मछुआरे थे, जो अफ्रीकन कंट्रीज के, जिनके पास छोटी छोटी लकड़ी की नाव हुआ करती थी और छोटे उनका छोटा सा कैपेसिटी था, छोटा नेट हुआ करता था, तो बड़ी जहाज आने से, बड़ा कमर्शियलाइज होने से उनको चांस ही नहीं मिलता था मछली पकड़ने के लिए। दूसरा क्या है कि जब बड़े लेवल पे बहुत सारे कंट्रीज ने अफ्रीकन कोस्टल एरिया पे कब्जा कर लिया और बड़े लेवल पे, मास लेवल पे जब मछली पकड़ना शुरू किया, तो कुछ सालों के बाद वहां पे, जैसे पहले अगर जाल डालते थे तो पीपल यूज टू गेट से लाइक 1 टन ऑफ फिश। बाद में क्या हुआ कि फिश का अमाउंट कम होता गया, क्योंकि उनका हैबिटेट लॉस होता गया, प्लस उनका प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्शन रेट कम होता गया। तो ड्यू टू दैट रीजन वहां पे अभी क्या है कि अभी अगर हम जाल डालते हैं, तो पहले अगर 15 साल पहले का अगर हम डेटा उठा के देखें कि अगर हम किसी एरिया में फिशिंग करते हैं नेट यूज करके, तो पहले अगर हमें 1 टन फिश मिलती थी, तो अभी के टाइम में हार्डली वहां पे 50 से 60 किलो फिश ही मिल पाता है उतने बड़े एरिया में। So this is a very say like very painful example of habitat loss as well as over exploitation of natural resources. सिमिलरली आप देखोगे कि बहुत सारा, जैसा कि नीदरलैंड्स में एक फेस्टिवल मनाते हैं जो कि अ, उसमें कि वेल मछली को इकट्ठा करके उसको किनारे पे लेके आते हैं और उनको ऐसे ही मार देते हैं। कुछ उनका एक फेस्टिवल है, बहुत बार वीडियो आता है फेसबुक पे और बहुत सारी जगह पे। तो सिर्फ एक दिन में कई हजार वेल मछली को वो लोग मार देते हैं। तो यू कैन सी कि हाउ हाउ डेंजरस दिस ऑल थिंग्स आर। एज पर माई नॉलेज, जो बड़ी फिश है, जो बड़ी मछली है समुन्द्र में, जब वो मूव करते हैं, तो लाइक देर इज लाइक एक्सचेंज ऑफ टेम्परेचर। ऊपर के ऊपर ऊपर के सतह पे, सरफेस ऑन द वाटर सरफेस का टेम्परेचर ज्यादा रहता है। जब बड़ी मछली मूव करती है ऊपर नीचे पानी के, तो वो टेम्परेचर को भी सर्कुलेट करती है विद इन द वाटर प्रोफाइल, और वो हमारा ग्लोबल लेवल पे या बड़े लेवल पे, दैट इज एक्टिविटी टू डिक्रीज द ग्लोबल टेम्परेचर। तो इन दैट केस, अगर सपोज करो कि बड़ी मछली धीरे धीरे अगर खत्म हो जाए, तो ये जो प्रोसेस है टेम्परेचर को कम करने का या टेम्परेचर को रिड्यूस करने का, मिनिमाइज करने का, ये प्रोसेस अपने आप कम हो जाएगा। जब ये प्रोसेस अपने आप कम हो जाएगा, तो डेफिनेटली देयर विल बी इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर और ग्लोबल वार्मिंग। So you can relate कि how these all things are important and how these all things are interrelated with each other. सिमिलरली बहुत सारा एग्जाम्पल है कि कैसे ओवर एक्सप्लॉइटेशन से बहुत सारा वेराइटी या बहुत सारा फिश का स्पीसीज खत्म होता जा रहा है, एंड वी आर नॉट गोइंग टू गेट इट इन कमिंग डेज। और किसी को पता है कि अफ्रीका में ही सबसे ज्यादा वायरस या नई नई बीमारियां आती हैं? ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली क्या है कि वो देश सबसे पिछड़ा हुआ देश है सर। वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो शिक्षित उतनी नहीं है, और वहाँ पे ज्यादा लोग करके आदिवासी लोग रहते हैं वहाँ पे, जिसकी वजह से उनके पास उतनी नॉलेज नहीं होती, और जिसके कारण वो बहुत सारी गंभीर बीमारियों के चपेट में आते हैं, और डिफरेंट टाइप के वायरस उनके द्वारा ही फैले जाते हैं। ऐसा मैंने देखा सुना है सर। हाँ, बहुत सारा वायरस और बहुत सारी नई बीमारियां अफ्रीका से ही शुरू होके आई है पूरी दुनिया में। और उसका एक रीजन ये भी है कि जब उन लोगों को फिशिंग करने के लिए नहीं मिला, तो दे स्टार्टेड फॉर हंटिंग एनिमल्स। वो लोग समुद्र में जाना छोड़ के जंगलों में जाना शुरू किए, बहुत सारे एनिमल्स को मार के खाना शुरू किए वो लोग। उससे क्या है कि धीरे 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 जो जानवरों की बीमारी होती थी, वो आदमियों में ट्रांसफर होने लगी, और उससे ही अब जैसे एक आदमी में आ गया, तो वो धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैलने लगा। ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि अफ्रीका से ही मैक्सिमम बीमारियां
नई बीमारियां शुरू होती है और पूरे दुनिया में फैलती है। So next term is that is called poaching. So poaching is the hunting and harvesting of certain animals and plants for economical benefit. पोचिंग का कुछ एग्जाम्पल दे सकते हो? कौन सा जानवर को मारा जाता है पैसा कमाने के लिए? हाथी का शिकार करते हैं उसका दांत के लिए, मगरमच्छ को मारते हैं उसका स्किन के लिए, और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनका की इलीगल जैसे हंटिंग करते सर हैं। गेंडा हो गया, उनकी सींग के लिए भी मारते गेंडा हाँ, को। so we see that there are several examples of poaching which are done by human beings for economic outcome या पैसे के लिए। पोचिंग या हंटिंग ऑफ एनिमल्स कोई नई चीजें नहीं है। फ्रॉम सेवरल इयर्स बैक दिस ऑल थिंग्स आर फॉलोड एंड स्टिल इट इज इन प्रैक्टिस बाय फ्यू पीपल। तो पोचिंग क्यों करते हैं? दैट इज डन फॉर अ लार्ज scale profit, and it is done mainly by illegal sale or trade of animal parts, meat and pelts. So we see that कि बहुत सारे एनिमल्स को मारते हैं, बड़े लेवल पे उनका शिकार करते हैं ताकि ज्यादा पैसा मिल सके, और इलीगल मार्केट, पूरी दुनिया में इलीगल मार्केट है जिसमें कि हम ले जाके उसको बेच सकते हैं एंड वी कैन अर्न मनी। So, poaching is not only limited to animals, but it is also several plants which are also affected by poaching. जिनसेंग एक प्लांट है जिसका कि बहुत सारा हेल्थ बेनिफिट्स है, जैसे कि वो डायबिटिक कंट्रोल करता है, पेन रिलीफ करता है, और भी बहुत सारा, जैसे कि सर्दी जुकाम में दैट इज यूजफुल फॉर कंजम्पशन, और ये ऐसी बीमारियों में दैट इज हेल्पफुल फॉर रिवाइविंग फ्रॉम ऑल दोज सिकनेस और डिजीजेस। तो इसलिए इनका कोचिंग किया जाता है एंड इट इज सोल्ड एट द रेट ऑफ $800 पर पाउंड। Second crop is that is Venus flytraps. It is found in North Carolina. वहां पे ये मिलता है और इसका इलीगल फार्मिंग और सेल और एक्सपोर्ट किया जाता है। Cycads are also a type of fruit which is used for medicine as well as food. So you can see कि this type of illegal activities are occurring in entire वर्ल्ड। इंडिया में कोई एग्जाम्पल है जो कि पोचिंग का एग्जाम्पल दे सकते हो ऑन प्लांट्स नॉट ऑन एनिमल्स? कोई एग्जाम्पल है या नहीं है? इंडिया में नहीं होता है। या में सर बेसिकली जानवरों का ही होता है। अच्छा, पेड़ का नहीं होता है? मेरे को पता है बिहार में भी होता है। बिहार में बहुत सारे लोग अपने घरों के आसपास में भांग का पौधा लगाते हैं। यस सर। ऐसा देखा है किसी ने? यस सर। ओके, यस तो सर। सो दैट इज वन एग्जाम्पल, और भी बहुत सारा होता होगा। यूपी में एक डिस्ट्रिक्ट है गाजीपुर। तो वहाँ पे अफीम की खेती होती है। कुछ कुछ जगह पे देर इज परमिशन फ्रॉम गवर्नमेंट, और बहुत सारे जगह पे लोग इलीगल भी उसका फार्मिंग करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं एंड दे यूज टू सेल इट इलीगली। तो बहुत सारा एग्जाम्पल है। अगर बड़ा एग्जाम्पल की बात करें तो वीरप्पन का नाम सुना है किसी ने? सर वीरप्पन का नाम सुना है हमने। यस तो सर। क्या करते थे वो? सर नाम सुना है लेकिन पता ही नहीं किसमें यूज होता है सर। अच्छा,
वो सदर्न इंडिया का बहुत बड़ा क्रिमिनल था जो कि चंदन की लकड़ी का तस्करी करता था। साउथ इंडिया का कई सारा जंगल के ऊपर उसका कब्जा था इलीगली, एंड ही यूज्ड टू डू पोचिंग फॉर चंदन की लकड़ी का वो तस्करी करता था बहुत सर बड़े उसकी फिल्म मास भी लेवल पे। बनी है, हाँ, फिल्म भी बनी है सर उसके ऊपर। हाँ, वो देख सकते हो तो तुम्हें पता चलेगा कि किस एरिया में वो एक्टिव था। तो वो बहुत सालों तक एक्टिव था और उसको कोई भी पुलिस नहीं पकड़ पाती थी। बहुत सारा पॉलिटिकल रीजन था और बहुत सारा करप्शन के वजह से ऐसा था। तो मेरे समझ से वो लास्टली 5-6 साल पहले वो मारा गया है। और अभी इंडिया का हालत ऐसा है कि उसकी डॉटर इज नाउ, आई थिंक वो इलेक्शन लड़ रही है या मे बी वो जीत भी गई है कोई इलेक्शन लड़के। So that is another part. Coming to our topic that is related to environmental, poaching activity is not only done for animals, but it is also done for plants. And in every country, there can be seen some example of poaching. So, do we think that only a single person is related for this activity? अगर हम वीरप्पन की बात करें तो क्या वो अकेला ही था जो कि इस इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व था? क्या कोई पॉलिटिकल सपोर्ट उसको नहीं होगा? सर बिना पॉलिटिकल और लोकल सपोर्ट के कोई भी नहीं यस, होता। यस। कोई भी जैसे इलीगल कि हम इलीगल एक्टिविटी हाँ, बिना पॉलिटिकल सपोर्ट के इट इज नॉट पॉसिबल। जैसे कि ओके। सर मैं उदाहरण के तौर पे एक बता सकता हूँ। हम्म, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर में हमने देखा कि आतंकवाद चरम सीमा पे है अभी। हम्म, तो आतंकवाद की शुरुआत कैसे होती है? आतंकवाद की शुरुआत अलगाववाद से होती है। अगर अलगाववाद नहीं होगा तो आतंकवादी देश में नहीं होगा या फिर किसी भी कंट्री में नहीं होगा। जैसे कि हमारे अलगाववाद नेता बहुत सारे जम्मू एंड कश्मीर में है। महबूबा मुफ्ती हो गई या फिर अब्दुल क्या नाम है उनका वो हो गए। ऐसे बहुत सारे अलगाववाद नेता हैं। और वैसे ही अगर चाइना की बात करें तो दलाई लामा है जो कि एक अलगाववाद नेता है। बहुत सारे उदाहरण है सर। ओके। बहुत सारा एग्जाम्पल है। अगर हमें एग्जाम्पल देखना है तो एक वीरप्पन सर का सबसे एग्जाम्पल है। बड़ा जो हमारा डेली लाइफ में होता है, ट्रैफिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नो एंट्री के बावजूद भी चलती है। हाँ, फिर उसके बाद में आप आपको अगर देखना है इलीगल वेपन कैसे यूपी में होता है सर्कुलेट, तो आप मिर्जापुर का वेब सीरीज देख लो। कितने लोगों ने देखा है मिर्जापुर का वेब सीरीज? सर मैंने देखा सर। तो उसमें है ना तो गवर्नमेंट का कैसे डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट रहता है या नहीं है? यस सर है। ओके। तो है। सिमिलरली अगर वीरप्पन की बात करें तो उतना मासिव स्केल में जो भी वो चंदन का पेड़ काटता था, तो ऐसा तो नहीं कि वो सारा पेड़ को अपने घर में ले जाके जलाता होगा। डेफिनेटली उसको कहीं ना कहीं सेल आउट करता होगा। तो आई एम 100% श्योर कि बहुत सारा उसमें पॉलिटिकल कनेक्शन होगा और बहुत सारे पॉलिटिकल लोग उससे जुड़े होंगे। दैट इज वाई अभी भी हम देखते हैं कि जैसा हमारा यूपी में, बिहार में पेड़ काटना इज नॉट अलाउड, बट स्टिल बहुत सारे पेड़ कटते हैं और पुलिस वाले और पॉलिटिकल लोग मिलके उसका बिजनेस करते हैं। बहुत सारा एग्जाम्पल है जो कि जो कि इलीगल पोचिंग को बढ़ावा देता है, एंड स्टिल इट इज ऑकरिंग इन द कम्युनिटी। ये किसी एक स्टेट में नहीं है, ये जो पूरे जगह पे है, सारे ही देश में फैला हुआ है और बहुत सारे, ये सिर्फ हमारे ही देश में नहीं, बहुत सारे कंट्रीज में ऐसा होता है। ओके। एक तरफ गवर्नमेंट दे से दैट कि दे प्रमोट पीपल फॉर प्लांटिंग मोर नंबर ऑफ ट्रीज, और दूसरी तरफ बहुत सारा डिफोरेस्टेशन होता रहता है बहुत सारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए, जो कि अभी भी बहुत सारा still it is occurring. So, how these poaching activities will affect the environment? बहुत सारा एग्जाम्पल है, जैसा कि अगर हम वीरप्पन का एग्जाम्पल ले, बहुत सारे बहुत सालों तक ही वॉज एक्टिव इन दैट रीजन।
तो ऐसा तो नहीं कि वो एक साल में सिर्फ एक दो पेड़ ही काटता होगा, उसने तो हजारों हजार पेड़ काटे होंगे। तो that is an example of deforestation और vegetation loss. So definitely large amount में अगर अगर deforestation होता है तो there is chances of negative impact on environment as well as different parameters of climatic parameters. तो एनवायरमेंट का पोचिंग के ऊपर बहुत सारा नेगेटिव इम्पैक्ट है जो कि हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। ह्यूमन एंड वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, किसी ने देखा है कभी जानवर और आदमी के बीच में लड़ाई? सर बेसिकली फिल्मों में देखा है सर। अच्छा, ऐसा ऐसा न्यूज में नहीं देखा है? न्यूज में भी हाँ, देखा है सर। वायरल कितने वीडियो कितने लोगों ने अपने खेतों में नीलगाय देखा है? सर मैं हम सर हम देखे। देखा है ना, बहुत सारे लोगों ने देखा है। दैट इज द बेस्ट यस सर एग्जांपल ऑफ ह्यूमन एंड वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। वो जानवर क्यों आता है खेतों में? वो क्योंकि जानवर हमारे खेतों में क्यों आता है? सर अपने जंगल भोजन के लिए सर। फसल खाने से ओके, तो वो जानवर बहुत हमारे, नुकसान करता है सर। हाँ, वो जानवर हमारे खेतों में नहीं आता है, बल्कि हम लोगों ने उसके घर में खेती करना शुरू कर दिया है। ओके, सो दैट इज वाई दिस ऑल एनिमल्स, हम बहुत बार न्यूज में देखते हैं कि बाघ शहर में घूम रहा था या हाथी शहर में घूम रहा था। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने उसका जो रहने का एरिया है दैट वी हैव खत्म कर दिया हमने उस एरिया को। तो उसके पास में कोई ऑप्शन नहीं है कि वो खाना खाने के लिए, रहने के लिए और उसके बहुत सारी एक्टिविटीज के लिए। सो दैट इज द मेन रीजन फॉर मैन एंड वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। ओके, सो नेवर से दैट कि वो जानवर हमारे घर में आया या हमारे खेत में आया। दैट इज वी हु हैव, ह्यूमन बीइंग्स हु हैव एंटर्ड देयर किंगडम। ओके, तो जब हम जंगल का एरिया को खत्म करते हैं, नेचुरल वेजिटेशन को हम खत्म करते हैं, तो उस एरिया के रहने वाले जानवर और डेफिनेटली कभी ना कभी वो लौट के हमारे तरफ आते हैं, या तो खाने के लिए या पानी के लिए या फिर बहुत सारी दूसरी चीजों के लिए। ओके, तो ऐसा बहुत बार देखने को मिला है कि मैन और वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट होते हुए, हम बहुत बार न्यूज में देखते हैं, टीवीज में देखते हैं। बहुत बार ऐसा न्यूज आता है कि कोई जानवर आया और बहुत सारे हमारे गायों को, बहुत सारे हमारे बकरी और भी बहुत सारा लाइफ स्टॉक को मार के और लेके चला जाता है। सो ऐसा बहुत बार देखने के लिए मिलता है। ऐसा क्यों देखने के लिए मिलता है? क्योंकि उनका जो नेचुरल हैबिटेट है जानवरों का, दैट हैज बीन डिस्टर्ब ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। ओके, तो इन आउटकम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ये सारे कॉन्फ्लिक्ट का आउटकम क्या निकल के आता है? बहुत बार हम ये देखते हैं कि ह्यूमन, बहुत सारे आदमियों को इंजरी होती है। बहुत सारे हमारे जो पालतू जानवर हैं जैसा कि लाइफ स्टॉक, उनको बहुत बार इंजरी होती है। बहुत बार जंगली जानवर उनको पकड़ के लेके चले जाते हैं खाने के लिए। देन देर इज क्रॉप डैमेज। बहुत सारे रूरल एरिया में जंगली सुअर आते हैं जो कि अ, हमारा क्रॉप को बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं, डैमेज करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल जो कि नीलगाय है, वो अभी के टाइम में बहुत ज्यादा हार्मफुल है, जो कि हमारे क्रॉप को नुकसान करता है। उसको भगाने के लिए क्या करते हैं? बेसिकली क्या करते हैं कि हम आवाजें लगा देते हैं और एक परमानेंट गांव में होता है कि पुतला खड़ा कर दिया जाता है खेतों में, जैसे चारों कि तरफ बाउंड्री की तरह। ओके, 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 तो ये सारी चीजें हम करते हैं वो सारे कॉन्फ्लिक्ट को हटाने के लिए। अभी अगर मॉडर्न टेक्निक्स की हम बात करें तो अभी इलेक्ट्रिक फेंसिंग होता है जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी रहता है और उसके वजह से कोई भी जानवर उसमें अंदर क्रॉस करके नहीं आता है। सो बहुत सारा एग्जाम्पल है जो कि हम उनको अवॉइड करने के लिए करते हैं। बट एज पर माई concern, this all activities or this all conflict
are result of human activities, not the result of animal activities or natural activities. How many of you agree? नहीं सर। ये सारा जो कंफ्लिक्ट होता है, डू यू थिंक दैट दिस इज ड्यू टू एक्टिविटीज, नेचुरल एक्टिविटीज, और that is the result of human activities? ह्यूमन Human मेरे एक्टिविटी। समझ से ये ह्यूमन एक्टिविटी से ही होता है, क्योंकि हम बहुत बार हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस किया है कि अगर हम अपने बचपन को याद करें तो हमारे आसपास में ढेर सारे बागीचे और पेड़ हुआ करते थे, जो कि अभी नहीं होता है। तो दैट इज एन बेस्ट एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड। पहले जब बहुत सारा वेजिटेशन था, बहुत सारे बागीचे थे, जंगल जैसा था, तो वहां पे जंगली जानवर को रहने के लिए सफिशिएंट, खाने के लिए, रहने के लिए उनके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस था। बट जैसे जैसे हम लोगों ने इंटेंसिव फार्मिंग करना शुरू किया, फार्मिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस को इंक्रीज करना शुरू किया, तो उनका रहने का, उनका खाने का जगह कम होता गया। दैट इज वाई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, एज पर रिजल्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, नियरली 1144 people were killed between April 2014 and May 2014। तो बहुत बार ऐसा न्यूज आता है कि बाघ आया, वो आदमी को मार के चला गया। सिमिलरली बहुत सारे और भी एनिमल्स है जो कि ह्यूमन बीइंग्स को नुकसान करते हैं। तो ये सारा एग्जाम्पल है ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ का कॉन्फ्लिक्ट को। किसके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है? ऐसा कोई है जिसके जो पास है मेरे पास है नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन? दीपिका, सर, श्रुति। किसके पास है? ओके, श्रुति। क्या सर? नेटफ्लिक्स, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन। सर मेरे पास भी है। ओके, मैं वो डॉक्यूमेंट्री का लिंक दे दूंगा, मेरे को याद दिलाना। वो लिंक, वो वीडियो देख के सीरियसली इट इज वेरी पेनफुल। मेरे को बहुत दुख हुआ कि ऐसा भी ह्यूमन बीइंग्स करते हैं अपने फायदे के लिए। तो यू विल अंडरस्टैंड कि हाउ ह्यूमन एक्टिविटीज, कैसे हम लार्ज स्केल पे बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम को हम कैसे हार्म पहुंचा रहे हैं, और उसका क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है बहुत मासिव स्केल पे। मेरे को याद दिलाना प्लीज, अपराजिता, श्रुति, मैं उसका लिंक डाल दूंगा। ओके। हमको भी ओके देखना है, सर। हम कैसे देख सकते हैं? अब उसके लिए तो फ्री में तो नहीं मिलेगा ना, तुम्हें सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, या फिर अपराजिता और श्रुति से कहाँ से जाके सब्सक्रिप्शन ले लो। हो सकता है क्या? डाउनलोड। तो वो तो नहीं डाउनलोड होगा। आई डोंट नो वेदर दैट डॉक्यूमेंट्री इज ऑन यूट्यूब और नॉट। सर मैंने हमारे तो पास तो हॉटस्टार है। नेटफ्लिक्स पे, हाँ, तो तुम्हारे जैसे लोग हॉटस्टार ही देखेंगे, ढंग नहीं की सर, चीज हम तो देखेंगे नहीं। नहीं सर, क्रिकेट के लिए सर किया था बस। ओके, ठीक है। सो ये फोटो में हम देख सकते हैं कि कैसे ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ का कॉन्फ्लिक्ट होता है। ऐसी चीजें बहुत बार अब कॉमनली हमें देखने के लिए मिल सकता है। दिस वन इज वेरी कॉमनली, अगर हम अपना गाड़ी और थोड़ा सा फ्रूट अगर छोड़ दे तो बहुत सारा ऐसा एक्टिविटी या ऐसा सिनेरियो देखने के लिए हमें मिल सकता है। Okay, so in next class we will discuss about what are the different methods for preventing this all activities.